بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. مائی نیم از فاروق اینڈ یو آر واچنگ فیس بک لائیو سیشن. آج کی یہ جو نشست ہے یہ آج کے دن کی مناسبت سے، آج آپ کو پتہ ہے 9 نومبر، اور 9 نومبر کو علامہ اقبال بابا جی اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے سیال کوٹ میں. تو ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور اس نیت سے کہ ہماری یہ حاضری جو ہے اس مرد کلندر کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ کریم علامہ اقبال کی روح کو ان کے جو اخروی معاملات ہیں اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کا فیض جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے. آج بالکل یہ ایک ذاتی نشست آپ سمجھ لیں، کیونکہ دن بھر وہ پروفیشنل ذمہ داریاں تھیں اس میں مصروف رہا. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے وہ فیس بک کے اوپر کچھ ٹیٹوریلز، وہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے. تو پورا دن آج آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا جوش و جذبہ جو تھا اس کا تعلق، اس کی نسبت بھی جا کے جڑتی ہے علامہ اقبال کے ساتھ. تو سب سے پہلے آپ لوگ سنائیں کہ آپ کیسے ہیں. مجھے ابھی چونکہ یہ چائے ملی ہے بالکل ایک بڑا سا کپ بھی، تو میں اس کی ایک چسکی لے لوں گرما گرم، پھر بے شک ٹھنڈی ہو جائے. پہلی ایک دو چسکیاں گرم ہونی چاہیے، اور پھر ہم علامہ اقبال کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا. یا حی یا قیوم. یہ شلوکے کی آواز زیادہ تو نہیں آتی اس میں؟ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. علامہ اقبال کو ہم سب ایک کتابوں کی حد تک شاید زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، نصاب میں بھی کسی حد تک یہ شامل رہے، لیکن علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کتابوں سے ہٹ کے علامہ اقبال کے اپنے پاس جانا پڑے گا کہ علامہ اقبال آپ ہمیں بتائیں آپ ہیں کیا. تو پھر ہمیں علامہ اقبال جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. یعنی جب تک آپ کی نسبت نہیں ہوتی، جب تک آپ کی نسبت نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، تب تک آپ کو وہ راز کی باتیں آپ تک وہ نہیں پہنچتی. جو کتابوں میں ہوتی ہیں وہ تو کتابوں تک پہنچ گئیں، کسی اور کا راز تھا، وہ اس کے حصے کا تھا، اس نے کتاب لکھ دی. لیکن علامہ اقبال سے کچھ سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کو ون ان ون جو ہے وہ علامہ اقبال کے ساتھ جڑنا پڑے گا. ون ان ون بنفس نفیس آپ کو علامہ اقبال کے روبرو پیش ہونا ہوگا، اور اس شاعر مشرق مرد کلندر کی بارگاہ سے براہ راست آپ نے التجا کرنی ہے کہ اے بابا جی مجھے بھی تھوڑا سا شعور دے دیجئے. تو یہی ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس سلسلے میں، تاکہ یہ ہدیہ ہمارا جو ہے وہ قبول ہو جائے اور آج کے دن کی مناسبت سے کچھ یادیں جو ہیں وہ بھی رہ جائیں. تو اب آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ میں سے کس کس نے علامہ اقبال کو یاد کیا ہے صحیح سچے لفظوں میں؟ ایک تو ہوتا ہے نا رسم ہوتی ہے، دن بھر واکس بھی ہوئی ہوں گی، کہیں پہ ایونٹس بھی ہوئے ہوں گے، لیکن علامہ اقبال میں ویسے ان کو ذاتی طور پر ایک دن میں آپ کو پتہ نہیں یاد کرتا. علامہ اقبال کے اندر ایک الف کا جو فلسفہ ہے، جیسے وہ بابا جی بلے شاہ نے غالباً کہا تھا کہ اکو الف تیرے درکار. تو یہ جو الف ہے، علامہ اقبال کا اس الف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور پھر ہر وہ ہستی جس کا الف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ تمام کے تمام میری نظر میں علامہ اقبال کے ہم نوا ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کی ہم نوائی کر سکیں اور اس الف کی باتیں کر سکیں جس الف کے ارد گرد نہ صرف علامہ اقبال بلکہ تمام صوفیاء، تمام بزرگ جو آئے ہیں، یہ ایک پورا قبیلہ ہے. ان کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اس الف کے ارد گرد ہے. یہ اسی مدار میں گردش کرتے ہیں جس کے سرے الف سے جڑتے ہیں، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی. تو الف جو ہے اس کو آج ہم اس کی مسٹریز کو تھوڑا کھولیں گے، اور پھر باتوں باتوں سے جتنی باتیں نکل آئیں، کوشش یہی ہے کہ مختصر نشست ہو. لیکن اگر علامہ اقبال چاہیں گے اور اللہ کی مرضی ہوگی تو نظام چلتا رہے گا. پھر جب تک چلتا رہے گا، چائے تو ہمارے پاس موجود ہے ہی ہے. اچھا، میں ذرا کامنٹس پڑھ لوں. بڑائش صاحب چونکہ بڑے عرصے کی غیر حاضری کے بعد، اور نام کی نسبت بھی ہے، نام کی نسبت بھی بڑی نسبت ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کے ساتھ اقبال بڑائش صاحب کی تو خیر ایک خصوصی نسبت ہے. پرائیویٹ باتیں ہیں وہ میں نہیں پبلک فورم پہ آپ کو بتا سکتا. تو اچھا، رونی حسن بھی ہے ماشاءاللہ، بنگلہ دیش سے ہمارا بھائی چھوٹا، بہت زبردست انسان. حارث وڑائش بھی آیا ہوا ہے جی، ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ میں نے اسپیشل شرٹ پہنی ہے چونکہ یہ مجھے تحفہ ملا تھا، تو میں نے آج کے دن کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کیا کہ آج بڑی محفل ہے،
तो बड़ी महफिल पे एक बड़ा तोहफा जो है वो भी पहनना चाहिए। अल्लामा इकबाल का ये जो अलफ का फलसफा है, आपने हो सकता है इस अंदाज में ना देखने की कोशिश की हो या कोई किताब पढ़ी हो। मैं जिस तरीके से समझता हूं, मैंने आज सारी किताबें साइड पे रख देनी है। आप यूं समझ लें कि ये सारे के सारे जो शेल्फ अल्लामा इकबाल के हवाले से मैंने कभी मुताला किए थे या करता रहता हूं, वो सब साइड पे चले गए। आज ये पर्सनल जाती नशिस्त है, इसमें मैंने आपको वो बातें बतानी है जो एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैंने अल्लामा इकबाल की ज़ात में वो महसूस की, और जो मेरा उनके साथ एक रब्त जुड़ा। फिर अल्लामा इकबाल के हम नवाओं का भी जिक्र करेंगे। इसमें एक बड़े खूबसूरत राज की बातें हैं। अल्लामा इकबाल का जितना भी फलसफा है, उनकी जितनी भी शायरी है, उनकी जिंदगी के जितने मामलात या मामूलात हैं, उन तमाम के अंदर मुझे एक अलफ नजर आता है। अलफ अल्लाह के लिए, अलफ इस्लाम के लिए। ये उनका दर्द है। उनके दर्द के आप कह लें कि ये तीन जाविये हैं। अल्लामा इकबाल के दर्द के तीन जाविये हैं। पहला जाविया उनका इस्लाम के इर्द गिर्द घूमता है, ये एक अलफ है इस्लाम के लिए। दूसरे जो अलफ है अल्लामा इकबाल के कलाम में, उनके पैगाम के अंदर, वो अर्ज वतन है। वतन की मिट्टी के साथ उनकी एक उनसीयत है, उनकी एक निस्बत नजर आती है। तीसरा जो अलफ है बाबा जी बुल्ले शाह वाला के इक्को अलफ तेरे दरकार, वो इंसानियत का है। वो इंसान के हवाले से उनकी तमाम बातें जो है वो इंसान को एड्रेस करती हैं, चाहे वो खुदी का फलसफा हो या शाहीन के हवाले से उनकी कोई मिजाज के बारे में वो बात करें। तो ये जो तीन अलफ के जाविये हैं, इस्लाम, अर्ज वतन और इंसानियत, ये आज का हमारा मौजू गुफ्तगू होगा। ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, और आपने इससे पहले शायद हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी, उसमें भी मैंने इन तीन चीज़ों का जिक्र किया था। अब इस अलफ को यहाँ पे रोकते हुए हम थोड़ा सा आ जाते हैं हम नवाओं की तरफ। ये भी मैं आपको अपनी ज़ाती जो मेरा फहम है इकबाल के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी अल्लामा इकबाल से पहले और अल्लामा इकबाल के बाद जितने भी सलफ सालहीन गुजरे हैं, बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, थिंकर गुजरे हैं, उन सब का इस अलफ कबीले के साथ एक ताल्लुक है। अल्लामा इकबाल से पहले भी जिनसे अल्लामा इकबाल ने फैज लिया, और वो भी जो अल्लामा इकबाल के बाद आए और जिन्होंने अल्लामा इकबाल से बराह रास्त या हम जैसे लोगों ने जैसे बिल वास्ता फैज लिया, वो इस अलफ के तीनों जावियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। या वो आपको इस्लाम का दर्द जो है वो शेयर करते हुए नजर आएंगे, या आपके साथ वो अर्ज वतन की मिट्टी के अंदर उस मोहब्बत में रचे बसे नजर आएंगे, या आपको उनके अंदर इंसानियत की बातें जो है वो दिखाई देंगी। तो अलफ के ये तीनों जाविये अल्लामा इकबाल से पहले भी मौजूद थे, अल्लामा इकबाल तक पहुंचे। ये कोई नई चीज नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल एक वरासत है जो मुंतकिल होती हुई अल्लामा इकबाल तक पहुंची। फिर अल्लामा इकबाल के वर्से में शामिल हो गए मुख्तलिफ लोग। उनकी जो विरासत थी, उनका जो तरका था इल्मी विरासत, उसमें अल्लामा इकबाल के बाद वाले लोग जो हैं वो शामिल हो गए आज के दिन तक, और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में भी रहेंगे, क्योंकि फज़कुरूनी और अज़कुरकुम की लपेट में आए हुए हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के इस अलफ के तीन जाविये आपको जिस इंसान में नजर आएंगे, जितने इंसान आपको अल्लामा इकबाल का जिक्र करते हुए दिखाई देंगे आज जो हमारे दरमियान हमारी सफ़ू में मौजूद हैं, हम उन्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन उनके अंदर अलफ इस्लाम भी आपको नजर आएगा। उनके अंदर आपको अर्ज वतन, वतन की मिट्टी से मोहब्बत नजर आएगी। उनकी रग रग में, वतन की मिट्टी में और उनके जो खमीर के अंदर आप ये समझ लें कि मोहब्बतें बसी हुई हैं। तीसरे नंबर में आपको वो इंसानियत की बातें करते दिखाई देंगे। वो महदूद नहीं है, वो फिरका वारियत पर यकीन रखने वाले लोग नहीं होंगे। उनके अंदर इज्तमाइयत होगी, उनके अंदर वहदत होगी। अब अल्लामा इकबाल के बाद बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आप उनको उंगलियों पे गिनवा सकते हैं, लेकिन मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से अपने असातिज़ा का जिक्र करना चाहूँगा। मैंने आपको इससे पहले भी एक लाइव सेशन में बताया था, आज फिर आपको बताता हूँ कि मैं जब बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा, तो अल्लामा इकबाल से शनासाई मेरी वालदा मोहतरमा और मेरे वालिद मोहतरम की वजह से मुझे हो गई थी। हमारे घर में बाबा जी इकबाल का जिक्र होता था। हमारे जो असातिज़ा थे प्राइमरी स्कूल के, मास्टर नज़ीर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो जिक्र करते थे। इकबाल एक ऐसा नाम था जो हमारे मोहल्ले में, हमारी महफिल में, हमारी कम्युनिटी में बोला जाता था, और हमारी नज़र में वो को बहुत बड़े ऐसे बुजुर्ग थे जिनका नाम लेते हुए हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे वालिदैन, वो थोड़ा सा अदब का मुजाहरा करते थे।
अल्लामा इकबाल का जो जिक्र था वो बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमारे माहौल में होता था। तो हमारे अंदर बचपन में वो एक, आप समझ लें कि जड़ें जो है ना वो पैदा होना शुरू हो गई अल्लामा इकबाल की मोहब्बत की। फिर जब मैं थोड़ा सा चौथी पांचवी क्लास तक मैं पहुंचा तो पीटीवी पे उस वक्त फहमुल कुरान जो है वो आया करता था। मैंने आपको इससे पहले भी एक लाइव सेशन में बताया था। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी, मेरे जो इब्तदाई असातिज़ा सबसे पहले, उनका फहमुल कुरान जो था वो मैं सुना करता था बैठ के, और मैं डायरी लेके बैठ जाना उनके सामने। ताहिरुल कादरी साहब जो है उनकी हर दूसरी बात अल्लामा इकबाल पे उनसे शुरू होती, उन पे ख़त्म हो जाती। अल्लामा इकबाल के साथ उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनकी वाबस्तगी, वो मेरे लिए एक और मरहला जो है वो बनती चली गई। तो इससे अल्लामा इकबाल का मेरे साथ जो एक ताल्लुक था, मेरी जो निस्बत थी, उसमें मजीद पुख्तगी आना शुरू हो गई ताहिरुल कादरी साहब की वजह से। उनको मैं एक तवील अरसा, उस दिन से लेके 80s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज के दिन तक प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की निस्बत अल्लामा इकबाल से नहीं टूटी। उसके बाद दीगर असातिज़ा मेरी जिंदगी में आए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिन उस्ताद मोहतरम ने मेरी जात पे डाला, बिल्कुल आप ये समझ लें कि जवानी से लेके आज के दिन तक, वो उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा, जिनका जिक्र करते मैं नहीं थकता। वो एक मोहब्बत का सफर भी आपको पता है शुरू हो जाता है। तो 90s से लेके आज के दिन तक वासिफ बासफा को अगर आप पढ़ें, उनकी कोई भी किताब ले लें, ये मेरे सामने जैसे हर वक्त मौजूद रहती है, कतरा कतरा कुलज़म, कोई आप इनकी तसनीफ उठा लें, शायरी को पढ़ लें, आपको हर दूसरी सत्र पे कहीं अल्लामा इकबाल दिखाई देंगे, कहीं मौलाना रूम नजर आएंगे। और इन सब का एक दर्द मुश्तरक है। अल्लामा इकबाल का भी एक दर्द था, मैंने आपको बताया, अल्फ के गिर्द घूमते थे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को भी मैंने हमेशा इन 3 मौजूआत पे बात करते हुए ज्यादा सुना है। इस्लाम के हवाले से बात करेंगे, अर्ज वतन के हवाले से बात करेंगे, और इंसानियत के हवाले से बात करेंगे। फिरका वारियत के खिलाफ अल्लामा इकबाल भी थे, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को भी मैं उसी तरीके से सुनता हूँ। फिर आ जाए सूफिया इकराम की तरफ, मेरे उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ इसी अल्फ के तीनों जावियों के बारे में बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये मैं आपको अपने दिल की बातें बता रहा हूं। मैंने कहा कि हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, निस्बत होती है ना हर बंदे की, तो मैं अपनी जात में अपनी निस्बतें बताने की आजादी रखता हूं। अल्लामा इकबाल इस अल्फ के 3 जावियों के इर्द गिर्द हमें दिखाई देते हैं, और वो तीनों के तीनों जाविये जिस इंसान में मुझे नजर आए, उनका मुझे अल्लामा इकबाल के साथ एक गहरा शगफ या ताल्लुक या निस्बत दिखाई देती है। जितने भी मैंने मुसन्नफीन को पढ़ा, चाहे वो नावल नगार थे, अफसाना नवीस थे, शुअराए कराम में से कुछ थे, या खतीब थे, या शोला बयान मकर्रर थे, उन सब के अंदर मुझे ये 3 चीजें जो है वो नजर आई। फिर इसके आगे 2 रूप बन गए। कुछ लोगों ने अल्लामा इकबाल को सेल करने की भी कोशिश की, उनके कलाम को, उनके जोश को, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था मुआशरे के ऊपर वो नहीं हो सका, उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए उठे फिर बैठ गए। लेकिन जिनकी शोहरत को, इज्जत को दवाम हासिल हुआ, और उनके मरने के बाद कुछ ज्यादा हुआ, जैसे मैं आज आपको लाइव सेशन में एक बड़े दर्द की जो एक बात है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप लोग इस पे गौर कीजिएगा। अल्लामा इकबाल जब तक हयात ज़ाहिरी में थे, हमें उनकी कदर नहीं थी। आप उस दौर की किताबें पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अल्लामा इकबाल फितरत की खिदमत करते रहे, निज़ाम फितरत की, अल्लाह का जिक्र करते रहे, इंसानियत का जिक्र करते रहे, अर्ज वतन की बातें करते रहे, अर्ज वतन की बातें करते रहे, पाकिस्तान का ख्वाब भी उन्होंने देखा। ये सारी बातें जब वो दुनिया से पर्दा कर गए, रुखसत हो गए, एक एक करके वो सारी बातें जो है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो गई। ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है। जब तक कोई बंदा मौजूद रहता है हमारे दरमियान, जब तक कोई बंदा, ये मैं आपको बड़े दर्द से कह रहा हूँ, किसी शायर का शेर भी है कि मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया। ये इंसान का एक खमीर है। जब कोई बंदा हमारे दरमियान मौजूद होता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। अल्लामा इकबाल के ऊपर अगर आप, जिन्होंने पीएचडीज की हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें, फतवे लगते थे, कुफर के फतवे, लोग उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया करते थे। आज आपको नजर आता है हर दूसरी जगह पे अल्लामा इकबाल का जिक्र। तो कायनात के मालिक ने, कायनात के बादशाह ने अपने जिक्र करने वाले को, जो उसका जाकिर था, उसके जिक्र को बुलंद किया हुआ है। आज हम लाइव सेशन में आपके साथ ये बातें कर रहे हैं, हम सब अल्लामा इकबाल को याद कर रहे हैं। ये फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्फ के ये जो 3 जाविये हैं,
इनके इर्द गिर्द घूमने वाले फज कुरूनी के चक्कर में होते हैं, और फज कुरूनी की मंजिल से जब वो गुजर के दुनिया से चले जाते हैं तो वो अज़कुरकुम की स्टेज पे आ जाते हैं। जब तक वो फज कुरूनी में रहते हैं लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मेरा दीनी और इल्मी ये फरीजा है अखलाकी तौर पर भी कि मैं आपके साथ वो सच्ची बात करूं जो मैं महसूस करता हूं। जब तक ये दानिश्वर, ये इंटेलेक्चुअल्स, ये थिंकर्स हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, हम इनको डी वैल्यू करके रखते हैं। क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, लिहाजा मैं बड़े कर्व के साथ अपने दोस्तों को कहा करता हूं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप ताहिरुल कादरी साहब के बारे में कोई खुल के बात नहीं करते, तो मैं जब ये बात करता हूं मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और आपके सुन के खड़े हो जाएंगे। मैंने उनको कहा कि मैं उनके मरने का इंतजार कर रहा हूं, फिर मैं उनकी याद में उर्स मनाया करूंगा, फिर मैं उनकी याद में तकरीबात मुनक्कद करूंगा, और मैं लोगों को बताऊंगा कि लोगों ताहिरुल कादरी साहब थे। कोई भी उस्ताद मोहतरम जब जिंदा होते हैं हम उनसे फैज नहीं लेते, हम उनसे फैज नहीं लेते। जब वो चले जाते हैं तो फिर हम उनकी याद में अजीब व गरीब किस्म के ढोंग रचाते हैं। सेम फेनोमेनन आपको नजर आता है। मेरी हयात ज़ाहिरी में जनाब वासिफ बासफ़ा के साथ मुलाकात है। मुझे ये शर्फ हासिल हुआ था जवानी में कि मैं आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की जिंदगी में बहुत थोड़े लोग एक कमरे में समा जाने वाले लोग होते थे, बहुत थोड़े लोग। बाकी अपने ही रिश्तेदार बेजार, अपने ही रिश्तेदार अक्सर बेजार। ये हर जगह पे आपको कहानी नजर आएगी। अल्लफ के तीनों जावियों के गिर्द घूमने वालों के अपने खानदान वाले उनसे बेजार हो जाते हैं, क्योंकि हर दफा वो बातें करते हैं जो वो सुनना नहीं चाहते, उन्हें मुश्किल लगती हैं, उन्हें बोर लगती हैं, उनकी मर्जी की बातें नहीं हैं। जब वो चले जाते हैं, इस लफ्ज पे गौर करें, लोग कौन से बोर लगते हैं जो हमारी मर्जी की बातें नहीं करते, लेकिन हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो बंदा अल्लाह की मर्जी की बात कर रहा है। तो गोया जब वो दुनिया से पर्दा करेगा फज़कुरूनी करके तो अज़कुरकुम की मंजिल से आ जाएगा। ये दर्द आप समझ गए होंगे। तो वासिफ बासफ़ा जब दुनिया से पर्दा कर गए 93 जनवरी में, तो उसके बाद उनका जिक्र आहिस्ता आहिस्ता पीक पे चला गया, आहिस्ता आहिस्ता पीक पे चला गया। और मेरे लफ्ज आप याद रखिएगा, ये जो आज हमारे दरमियान दानिश्वर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की शक्ल में, आप इनके मरने के बाद, इनके पर्दा फरमा जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद आप देखिएगा इनके ऊपर किस कदर आप इनके राज जो आपके सामने खुलेंगे। आपको अच्छे लगे ताहिरुल कादरी साहब या बुरे लगे, मैं आपको इसको कुल्ली तौर पर बता रहा हूं। कोई आम सा इंसान भी आप ले लें जिसकी जिंदगी में इनकलाब आया, जुनैद जमशेद को आप देख लें। कोई बंदा जब हमारी जिंदगी में मौजूद होता है और वो चला जाता है तो फिर हमें याद होती है, लेकिन कुछ की यादें 40वें तक रहती हैं। बरसी पे जाके थोड़ा सा रस्मन हम उनको याद कर लेंगे, लेकिन जिनके फिर दिन मनाए जाएं और जिनका उर्स मनाया जाए, वो बातें फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जाती हैं। और उसकी शर्त क्या है? फज़कुरूनी, फज़कुरूनी। अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उसकी पसंद के आगे दो जिक्र हैं। अल्लाह ताला की जात जो है वो अपनी मिट्टी से इश्क करने की बात भी करती है। जिस जगह पे हम होते हैं वहां पे सुकून होता है। ये पाकिस्तान, ये हमारी धरती है, ये हमारी जन्नत है। हर इंसान जिस जगह पे होता है वो उसका मुल्क, उसकी धरती होती है। प्लस इंसानियत के साथ, ए आदम के बच्चों, आपस में भाई भाई बन जाओ, तुम सब आपस में भाई भाई हो, एक आदम की औलाद हो, तो जामियत आ जाती है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। यार फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो इक्को अलफ तेरे दरकार, ये जो एक अलफ के 3 जाविये हैं, और जैसे प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब हैं, बहुत सारे दीगर दानिश्वर हैं, जब तक वो दुनिया में रहे उनका जिक्र उस तरीके से हमने नहीं किया। वो दुनिया से पर्दा कर गए। सागर सदीकी को मिसाल ले लें, वहां मियानी कब्रिस्तान में अब उनका उर्स होता है, सागर मेला होता है। वो लाहौर की फुटपाथों पे उन्होंने बड़ी बेबसी के आलम में उनकी जान चली गई। जब तक वो जिंदा थे लोग उनको भिखारी समझते रहे, अब लोग उनको पता नहीं किस तरीके से देखना शुरू हो गए। तो सागर का भी अगर आप कलाम पढ़ें तो सागर ने भी रात की तन्हाइयों में वहां पे कनेक्शन किया था, एक रब्त किया था उसने। वो मतलब है कि इस तरीके से वो उस अलफ के जाविये के इर्द गिर्द तवाफ करने वाले बन गए थे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सागर सदीकी को दोबारा जिंदा कर दिया। जिसने अल्लाह का जिक्र किया उसको जिंदा कर दिया गया, उसके लिए मौत खत्म हो जाती है।
वो उस दायरे में चला जाता है जिस दायरे में बका है। ये बातें शायद इस वक्त आपको उस तरीके से समझ ना आए, लेकिन ये लफ्ज आपके अंदर गूंजते रहेंगे। जब आप थोड़े से बड़े होंगे, मार खाएंगे आगे पीछे, आपको अंदाजा होगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो जब तक कोई हमारी सफ़ों में मौजूद होता है, अब मेरे अपने यहाँ पे जिंदा असातिज़ा कराम है, मैं क्यों अपने असातिज़ा कराम का इतना दीवाना वार जिक्र करता हूं जो जिंदा है? उसकी वजह यह है कि इससे पहले कि ये दुनिया से चले जाएं, इनको टच कर ले, इनके साथ मस कर ले, इनसे बराह रास्त कुछ ले लें, अपने हिस्से की बातें। बाद में आपने वो एक ड्रामा तो हम कर सकते हैं कि दिन मनाया, बड़े अजीम इंसान थे, ये किया वो किया, उस पर सेमिनार्स होंगे, अखबारों में बड़े बड़े मैगजीन में कॉलम छपेंगे, क्या फायदा? अब्दुस्तारीदी साहब चले गए, बाद में किताबें लिखते रहे आप उनको। तो जब तक वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी सफ़ों में मौजूद है, हम उनके एहतराम में गफलत करते हैं। हम चूंकि गाफिल होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो फिर हमसे फितरत एहतराम करवाती है। जैसे आज हम अल्लामा इकबाल के लिए बैठे हुए हैं, अल्लामा इकबाल का जिक्र हम नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। हर उस बंदे से करवाया जा रहा है जो बंदा अल्फ के इन 3 जावियों के साथ कहीं ना कहीं उसकी कोई निस्बत जो है वो मौजूद होती है। तो यहां तक आपको समझ आ गई है तो मैं चाय का 1-2 घूंट ले लूं, और गला जो है वो आज थोड़ा खुश्क भी हो गया। अगर समझ आ गया तो यहाँ नीचे कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे भी समझ आ जाए ना, मलाई भी जम गई। या हय्यु या कय्यूम। मोहब्बतें एहतराम का तकाजा करती हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर कोई इंसान बेअदब है तो उसका मोहब्बतों से क्या ताल्लुक? बेअदब इंसान मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मोहब्बत का एक फैज होता है, और ये फैज सिर्फ बाअदब इंसान के लिए है। बेअदब इंसान या तो मोहब्बत कर ही नहीं सकता, या अगर मोहब्बत के नाम पे ढोंग भी रचाएगा, बहरूप भी भरेगा, तो नाकाम हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। लेकिन जहां अदब होगा वहां मुराद पूरी हो जाएगी। वहां मोहब्बतों का सफर जो है वो एक खुशबू के साथ शुरू होगा, मुआशरे में खुशबू फैलती चली जाएगी, और उसकी मंजिल जो है वो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर होती चली जाएगी। वहां पे 1 मिनट जी, ये थोड़ा सा फोन आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा बंद भी कर लूं, क्योंकि इस टाइम फोन का कोई मूड नहीं है। तो आप ये खुशबू का माहौल है, ये अदब के साथ जुड़ता है, इसकी निस्बत अदब के साथ जुड़ती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो मोहब्बतें थीं अलिफ के साथ, इस्लाम के साथ, आप उनके तमाम कलाम को आज इस नज़र से देखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि हर दूसरे कदम पे उनके ऐसे ऐसे अशार थे जिनके अंदर हमें इस्लाम से वाबस्तगी जो है वो नजर आती है, इस्लाम से वाबस्तगी नजर आती है। हर दूसरे कदम पे हमें नजर आता है अर्ज़ वतन की बात, हर तीसरे कदम पे हमें नजर आता है इंसानियत की बात, खुदी की बात करते हैं, शाहीन की बात करते हैं। तो ये 3 जाविये आप आइंदा रिसर्च करें इस अंदाज में कि जहां जहां आपको जिन लोगों के अंदर अल्लामा इकबाल से निस्बत जिस कदर दिखाई देगी, वो इन 3 जावियों के इर्द गिर्द होंगे, इसी मुहीत में होंगे, यही उनके दायरे होंगे, इसी में वो गर्दिश कर रहे होंगे, ना इससे ऊपर जाएंगे ना इससे बाहर निकलेंगे। और फिर ये एक लड़ी बनती चली जाएगी, एक कारवां बनता चला जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अल्लामा इकबाल के चाहने वाले अल्लामा इकबाल से ऊपर वालों के साथ जुड़ जाते हैं, और जो अल्लामा इकबाल के बाद आए और उनके बाद जो आएंगे वो उनके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये नस्ल दर नस्ल, तबका दर तबका हम जुड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से एक लड़ी बनती है। जैसे पानी वाटर साइकिल होता है, ये पूरा एक स्पिरिचुअल साइकिल चल रहा है। ये कबीलों की बातें होती हैं। इनाम याफ्ता का ग्रोह अलग हो जाता है, गुमराहों का अलग हो जाता है, गजब याफ्तगान का अलग होता चला जाता है। तो हमने अपना इंतखाब करना है, अपने हिस्से का इंतखाब करना है। तो मैं उन असातिज़ा इकराम का इंतखाब करता हूँ। हमेशा मेरी ज़िंदगी में मुझे बड़ी किस्मत है मेरी, इस हवाले से मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। मुझे हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई ऐसे उस्ताद मोहतरम मिल जाते हैं जो इकबाल शनास होते हैं। मेरे असातिज़ा इकराम जो अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे जनाब डॉक्टर मुनव्वर हाशमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत जुमला आज के दिन में आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे वो जुमला, और वो आम जुमला नहीं, वो कहा नहीं गया, इरादी तौर पर नहीं कहा गया, शौरी तौर पर जनाब मुनव्वर हाशमी साहब ने वो जुमला नहीं कहा, वो उनसे लिखवाया गया। और आपने क्या कहा उसमें, क्या लिखवाया उनसे कि अल्लामा इकबाल ने शेर नहीं लिखे, फैसले लिखे हैं। शेर नहीं, फैसले लिखे हैं। कितनी बड़ी बात है।
अल्लामा इकबाल ने फैसले कर दिए हैं कौम के लिए, उम्मत के लिए, इंसानों के लिए। अब उसी तरीके से जो मेरे दूसरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब डॉक्टर सैयद ओन साजिद नकवी साहब, जबरदस्त इकबाल शनास, आपने पीएचडी की, डॉक्टरेट की हुई है इकबालियात में। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझें कि हर दूसरे कदम पे ऐसे असातिज़ा जो हमें मिल जाते हैं जिनके इस अलफ के जाविये के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है। प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब उस सफ में है मेरी जिंदगी के हवाले से। और उसके बाद आप वासिफ बासफा को, इनके तमाम शायरी को पढ़ लें, आपको इकबाल नजर आएंगे, मौलाना रूम नजर आएंगे। मौलाना रूम की शायरी में भी जामियत है ना, तीनों जाविये आपको नजर आएंगे। जितने सूफिया कराम आए हैं बरसगीर पाको हिंद में, इसी अल्लफ के 3 जावियों के इर्द गिर्द वो रहे हैं। अल्लाह की बातें, इंसानों की बातें और अपनी मिट्टी की बातें। ये आपको मुहिब्बे वतन दिखाई देंगे। वासिफ बासफा पाकिस्तान नूर है और नूर का जवाल नहीं। मोहब्बत में यानी इस तरीके से ये दीवानावार आगे बढ़ते हैं, ये मलंग हो जाते हैं अपने वतन के लिए, ये अपनी मिट्टी से इश्क करते हैं। ये सूफिया कराम की पहचान है। आज तक कोई सूफी हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसे अपने वतन से मोहब्बत ना हो। सूफी बरकत साहब सलार वाले, आप देखें क्या खूबसूरत उनके जुमले हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से। यानी तमाम सूफिया कराम, बाबा बुल्ले शाह जी से लेके यहां तक आज के दिन तक आप देख लें, इस वतन की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले, इसके जबरदस्त आशिक। और इनकी एक और जाविया भी है, ये इंसानों के भी आशिक होंगे। इनकी नजर में कोई जात पात, कोई मजहब नहीं। इसी वजह से रिश्तेदार जो है वो इनको पसंद नहीं करते बाज़ औक़ात, क्योंकि या आपको किसी खास मसला का होना पड़ेगा, या आप वो बातें करें जो महफिल में उस वक्त लोग पसंद करते हैं। अगर आप महफिल से हट के बातें करेंगे, आपको तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। डॉक्टर अली शरीती को मैंने बड़े गौर से पढ़ा हुआ है बचपन से। उनका एक जबरदस्त जुमला मुझे नजर आता है कि दानिश्वर जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। दानिश्वर वाकई तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या है कि वो जो बातें करना चाहते हैं लोग वो सुनना नहीं चाहते, और जो लोग सुनना चाहते हैं वो बातें उनको आती नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। फिर कभी जनाब नहर के किनारे लेट जाएंगे, कभी सुन्नत यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम आबादियों से कट के गारे हिरा पे चले जाते थे। ये बहुत बड़ी सुन्नत है, तखलिया जो है। कभी कभी हम सब गारे हिरा में बैठ जाते हैं, ये सुन्नत है बहुत बड़ी। हम कट जाते हैं दुनिया से, हम बेजार हो जाते हैं इन मामलात से। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इससे पहले वाले 1-2 सेशन में, कि मैं जब छोटा था तो मुझे फिक्र होती थी कि मैं वो बात करूं कि जो लोग पसंद कर लें, बिल्कुल लड़कपन में। अब मुझे हर कड़वी सच्ची बात जो मेरे दिल में आती है, मैं इसको समझता हूं कि ये बरहक है, मेरी रिसर्च उस पर मुकम्मल है, मैं कर देता हूं, किसी को पसंद आए या ना आए। क्यों कर देता हूं, आज आपको एक और राज की बात भी बताऊं। बारिश जब बरसती है ना, बारिश जब बरसती है तो वो इस बात का ख्याल नहीं करती कि ये जो छत वाले हैं इनके नीचे बारिश नहीं जाएगी। बारिश का काम है बरसना, नीचे पहाड़ आ जाए, सहरा आ जाए, कूड़े करकट का ढेर आ जाए, समंदर आ जाए, दरिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो नीचे वालों का फैज है। बारिश ने अपना काम करने है बरसने वाला। तो हमारा काम है कि हम सिर्फ अपना किरदार अदा करें, हम बोलते रहें, सुनने वाले सुन लेंगे, जानने वाले जान लेंगे। हम सबको ना तो सुना सकते हैं ना समझा सकते हैं, कोई पैगंबर भी यह काम नहीं कर सका। पूरी इंसानियत के हवाले से अगर आप देखें तो तमाम पैगंबर आए, उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, चले गए। हम सब अपने अपने किरदार के धागे में बंधे हुए लोग हैं। अल्लामा इकबाल की तरह के जो लोग थे अल्लफ के धागे में बंधे हुए, वो भी अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करके चले गए। हमने भी चले जाना है, तो अपनी अपनी जिंदगियों में अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। ये फिक्र छोड़ दें कि लोग आपको समझ नहीं रहे या लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दें। आप अपनी तरफ से अपनी जनाब में बेहतर काम, बेहतर बात, बेहतर कलमा जो है वो शेयर करने की कोशिश करें। और फतवे से ना डरें, किसी किस्म के फतवे से ना डरें। लोग आपको क्या कहेंगे मत डरें, उस अल्लाह से डरें। या आप लोगों की रजा के कलमात अदा कर लें या अल्लाह की रजा के कलमात अदा कर लें। और ये जो अल्लफ के 3 जावियों वाले लोग हैं, इनके अंदर एक मुझे बड़ी खूबी नजर आती है। दुनिया में जब तक ये जिंदा होते हैं बहुत कलील तादाद, थोड़े लोग इनको पहचानते हैं। जब ये पर्दा कर जाते हैं तो फिर वो लोग आगे आ जाते हैं जो कारोबारी मिजाज के होते हैं, जो इनके नाम पे फिर मशलें रोशन करते हैं,
کاروبار کرتے ہیں. میں واصف باصفا کے سیمینار جو ہیں وہ اٹینڈ کرتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. وہ لوگ پہلی صف میں ہیں, جو کبھی واصف علی واصف کی محفل میں نظر نہیں آتے تھے. ان کی مارکیٹنگ کی, ان کی پبلسٹی کی اب ایک ضرورت بن گئے ہیں واصف باصفا. یہ بات سمجھیں, دنیا داری کا ایک نظام چل پڑتا ہے, اور وہ جو سچے مخلص جانثاران ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں. ان کی محبتیں کسی اور طریقے سے ہوتی ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ. ہم اگر پہلی صف میں نہیں, دوسری میں نہیں, تیسری میں نہیں, ہم باہر بیٹھ کے مسجد میں جہاں جوتیاں رکھی جاتی ہیں وہاں بیٹھ کے بھی ہمارے سجدے قبول ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ گئے؟ یہ نسبت کی بات ہوتی ہے. نسبت اگر آپ کی ہو تو آپ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ سے دور یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بھی گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں کا مزہ چکھ سکتے ہیں. نسبت نہ ہو تو وہاں اس مٹی میں رہ کر بھی یزید رہتا ہے, ابو جہل رہتا ہے, عبداللہ بن ابی رہتا ہے. اس مٹی کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوا. یہ بات سمجھ گئے؟ تو ہماری جو نسبت ہوتی ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی نسبتوں کے مطابق چیزوں کو سمجھیں. عربی زبان یزید کی بھی زبان تھی. میں عربی زبان سے نفرت نہیں کرتا کیونکہ میری نسبت یزید نہیں. میرا معیار, میرا انتخاب, میرا جو پیمانہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں عربی کے ساتھ. سعودی عرب میں ابو جہل بھی تھا, میں سعودی عرب سے نفرت نہیں کرتا. نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کرنے والے بھی اسی مٹی پہ تھے, لیکن اس کے باوجود مجھے خاک مدینہ و نجف نظر آتی ہے. یہ میری آنکھ کا سرما ہے. وہ خاک کیوں ہے؟ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کیوں ہے یہ سرما؟ چونکہ ہماری نسبت نبی پاک علیہ السلام. تو یہ جو الف کے زاویے کے لوگ ہیں, یہاں آپ کو جب یہ اسلام کی بات کریں گے تو اسلام میں جو سب سے ڈومینیٹ ذکر نظر آئے گا آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا آئے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ذاکر بن جاتی ہے. ہم اللہ کے ذاکر ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کو وہ مقام محمود عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذاکر بن گئی, اور نہ صرف خود ذاکر ہو گئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہ صرف خود ذکر کیا, فرشتوں کو شامل کیا, ہمیں تلقین کی کہ اے مومنو ذکر کرو, درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہ کریم اس محفل کو اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے, اور علامہ اقبال کے درجات میں مزید اضافہ ہو جائے اور ان کا فیض عام ہو جائے. ہم ان کو سمجھنا شروع کر دیں, ہمیں ان کے ساتھ ایک نسبت ہو جائے, ایک تعلق بن جائے, اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائے جو الف کے تینوں زاویوں میں گھومنے والے لوگ ہیں. یقین مانے آپ کو زندگی میں محبتوں کا مزہ آ جائے گا, آپ کو مزہ آ جائے گا. پھر آپ کو ایک تر و تازگی محسوس ہوگی اپنی روح کے اندر, کیونکہ جب تک ہم جڑیں گے نہیں ہم اس کارواں کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں جڑنا پڑے گا. جب آپ جڑ جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو اس الف کے تین زاویوں والے لوگ ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا سرا جا کے ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. چونکہ آپ علیہ السلام نے ہی یہ بتایا تھا ہمیں کہ فرقوں میں تقسیم مت ہو, آپس میں جھگڑے ختم کر دو, یتیم کا مال نہ کھانا, بیواؤں مسکینوں کا خیال رکھنا. یہ نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں انسانیت کی باتیں. پھر عرض وطن کے حوالے سے بات کی, خندق کھود دی اپنے مٹی کی حفاظت کے لیے, خندق کھود دی گئی, کتنی حفاظت کی مکہ اور مدینہ کی, یہ وطن تھا. پھر اس کے بعد دیکھیں اسلام کے حوالے سے کتنی قربانیاں دی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا, اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ الف کے تینوں زاویے آپ ایکسپلور کریں. میں اس طریقے سے ان تمام لوگوں کو, سلف صالحین کو سنتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے میری پروفائل پہ آج تک کوئی تعصب نہیں دیکھا ہوگا. میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, طارق جمیل صاحب ہوں, سید منور حسن ہوں, سید ابو العلا مودودی صاحب ہوں, کسی مسلک کا کوئی بھی انسان ہو, میں انہیں پسند کروں یا نہ پسند کروں نظریاتی طور پر, لیکن میں ان کو نہ گالیاں دیتا ہوں نہ تعصب کا مظاہرہ کرتا ہوں. کون جانتا ہے ان کی نسبت کہاں پہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں اپنی پروفائل پہ جن سے میری محبت کا رشتہ ہے. تو میں کسی کو اس طریقے سے چھیڑتا نہیں, نہ میں کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے نا, مجھے وہ تنگ نہیں کرتے. میری نسبتوں میں ایک وسعت ہے,
मेरी निस्बतों में वुसअत है। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा कहते हैं कि दरिया जहां जहां से गुजरता है अपनी जगह बना लेता है, पहाड़ों में से सिमट कर, मैदानों में फैल कर। इतनी सी बात हमने करनी है। तो आप जो मजबूत अकीदा होता है उसमें वुसअत पैदा होती है, वो छोटे छोटे अकीदों को अपने साथ मिला लेता है, उनकी नफी नहीं करता। तो हर इंसान की निस्बतें अजीम होती हैं। अगर हम किसी भी मजहब वाले की तौहीन करेंगे, किसी भी मसलक वाले की तौहीन करेंगे और बदले में हम इज्जत चाहेंगे तो नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। इज्जत के लिए आपको किसी के झूठे खुदा को भी झूठा नहीं कहना, ये मयार सेट किया गया है। जब तक हम उस क्राइटेरियन पे पूरा नहीं उतरते, ये दुनिया में फसाद फैलता रहेगा। और यही हम कर रहे हैं। हम दूसरों से नफरत करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे हमसे मोहब्बत करें। ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम उनसे नफरत जरूर करेंगे जिनको अल्लाह के इन 3 जाफियों से बुग़्ज़ है। जो इस्लाम के खिलाफ होंगे, हमारी उनके साथ दोस्ती नहीं हो सकती। जो इंसानियत के खिलाफ होंगे, हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। जिनको हमारी इस मिट्टी, ये जो अर्ज़ वतन है, ये पाकिस्तान, जिनको ये एक आंख नहीं बहाता, वो हमें एक आंख नहीं बहाते। जो इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। ये बात समझ गए? ये वतन के साथ एक मोहब्बत है। हर इंसान जिस मुल्क में है, यही बातें उसको सोचनी चाहिए अपने अपने वतन के हवाले से। फिर सुकून रहता है, फिर जंगें नहीं होती। इसमें बड़ा मजा है, क्योंकि हर बंदा अपनी हद में रह के ये सोचेगा तो कोई जारे जो है वो जारहियत नहीं कर सकता। लेकिन नफरतें जब हम पालते हैं, फिर जंगें होती हैं। तो हम अपने मिजाज में रहें, अपनी हदूद में रहें, अपनी निस्बतों के साथ जिंदा रहें। दूसरे भी ऐसे ही रहें तो जंगें नहीं हुआ करती। तो ये सारी महफिल अल्लामा इकबाल के नाम, उनको मैंने डेडिकेट किया। अल्लाह के इन 3 जावियों की रोशनी में आप अल्लामा इकबाल के कलाम का मुताला करना शुरू कर देंगे, आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। तो मैंने इसलिए, मेरी चाय ठंडी करने के आप लोग जिम्मेदार हैं या अल्लामा इकबाल जिम्मेदार हैं, या उस्ताद मोहतरम वासिफ बासवा को मैं नहीं जिम्मेदार करार देता, क्योंकि इनके साथ साथ चाय चलती रहती है। तो अल्लामा इकबाल बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। मेरा दिल था मैं आज आपको शिकवा जवाब शिकवा सुनाता। अगर आप लोग बोर नहीं हुए तो मुझे कह दें, मैं आपको कुछ शेर सुना दूं शिकवा जवाब शिकवा से। वो बात लंबी हो जानी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले आपके साथ अपना दर्द जो है वो शेयर करूं। अशार तो आप पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह के 3 जाविये आपने, मुझे उम्मीद है कि पहली दफ़ा सुने होंगे या देखे होंगे। तो इस तरीके से रिसर्च करेंगे, आपको बाबा जी इकबाल के साथ निस्बत हो जाएगी। फिर आपके उस्ताद हैं, आप किसी ऐसे पीर के यहाँ मुरीद हैं, कोई ऐसा उस्ताद जो आपको पढ़ाते हैं, वो अगर इन 3 जावियों में जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाए उनके साथ, जुड़ जाए उनके साथ। हर शहर में दांतों के डॉक्टर बैठे हुए हैं ना। अब जरूरी तो नहीं कि फैसलाबाद वाले जो डेंटिस्ट हैं वही अच्छे हैं और इस्लामाबाद वाले अच्छे नहीं हैं। नहीं, डेंटिस्ट जहां पे हैं दांतों के दर्द का इलाज कर लेते हैं। तो उस्ताद जहां पे हैं, पीर जहां पे हैं और सुच्चे हैं, खालिस हैं, वो इलाज कर लेंगे, इलाज कर लेंगे। तो इसलिए मैं अपने असातिज़ा, अपने डॉक्टरों के पास बैठता हूँ। मेरे दांतों का जो दर्द है, उनकी गोलियां या वासिफ बासफा के पास होती हैं, या ताहिरुल कादरी साहब के पास होती हैं, या इसी तरीके से मेरे दीगर असातिज़ा इकराम जिनका मैंने जिक्र किया उनके पास होती हैं। मुझे जब दवाई चाहिए होती है, मैं उनके क्लिनिक पे चला जाता हूँ। वो मेरी पल्स पे हाथ रखे बगैर भी चेक कर लेते हैं। उन्हें पता है इससे टेढ़ च पीड़, तो मुझे कोई ना कोई दवाई दे देते हैं। हर मर्तबा, हर रोज कोई दवाई मिल जाती है। मैं सुकून से बिल्कुल अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। सारे अमराज, अंदरूनी व बैरूनी, खफीफ और ज़ाहिरी, सब दूर हो जाते हैं। सो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लका, चूंकि वो सबसे बड़े हकीम हैं, आलमीन के हकीम हैं। अगर हम समझें, हमारे सारे अमराज दूर हो जाए। अगर हम समझें, काश हम उस तरीके से समझें। अल्लामा इकबाल को ही हम समझ लेते तो बात कहाँ से कहाँ चली जाती। मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है दुनिया। कोई सवाल आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और मैं थोड़ा सा अब आपके कमेंट जो है वो बहुत शुक्रिया वराज साहब, आपकी मोहब्बतें हैं। काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद है। मुझे इजाज़त है जी, मैं चाहे अब सबके सामने, चलो खैर कौन सी गंदी बात है जो इसका पर्दा करें। शुरू का अगर आप सुनेंगे तो एंजॉय करें। अगर आप कहते हैं तो मैं 2-4 शेर पढ़ देता हूँ। मुझे कहेंगे तो मैं सारी शिकवा और जवाब शिकवा आपको सुना दूंगा, और कहेंगे इसको एक एक लफ्ज़ के ऊपर मैं इसकी तशरीह करूँ, सलीस करूँ, वो भी कर सकता हूँ।
میں نے بہت چھوٹی عمر میں، جب ابھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، مونچھیں تو خیر ابھی بھی نہیں آئی، تو میں نے علامہ اقبال کے سب سے پہلے شکوہ اور جواب شکوہ، اس کے بعد طلوع اسلام جو آپ کی طویل نظمیں ہیں وہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی 5ویں کلاس میں۔ اور طاہر القادری صاحب اکثر طلوع اسلام میں سے اشعار پڑھا کرتے تھے یا شکوہ جواب شکوہ کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ اس وقت ان کی داڑھی جو تھی وہ بالکل کالی تھی، جوان تھے بالکل، اب تو وہ بزرگ ہو گئے نا، بابا جی ہو گئے، تو اس وقت وہ بالکل ینگ بلڈ، غصہ زیادہ، جذبات زیادہ ہوتے تھے، تو ہم بیٹھ کے بچوں کی طرح ان کی جو لفاظی تھی، ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کا تلفظ، وہ بڑا زبردست مجھے لگتا تھا۔ علامہ اقبال کے حوالے سے جب بات کرنی، مجھے یاد ہے ان کی ایک تقریر، انہوں نے اپنے سننے والوں کو، سامعین کو، حاضرین کو نصیحت کی، بلکہ حکم دیا کہ مجھ سے ملنے کے لیے لاہور آنا ہے تو پہلے مرد کلندر کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں سلام کرو، وہاں ملو، علامہ اقبال سے اجازت لو، پھر میرے پاس آنا، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، وہ بہت بڑے انسان ہیں۔ یہ باتیں، یعنی جب انسان اپنے آپ کو، یہ میں دیکھ رہا تھا اس دن مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک میں نے تقریر سنی، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ عزت دیتا کسی بندے کو جو اہل بیت کے آگے جھک جاتا ہے نا۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ بیان سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ اپنے آپ کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جس طرح وہ پیش کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے شجرہ پڑھا، یہ اس کا حصہ ملتا ہے لوگوں کو پھر جب آپ اس سلسلے سے جڑ جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں ادب کے ساتھ۔ جس نے ادب نہیں کیا وہ چاہے جس پیمانے کا عالم تھا وہ رسوا ہو کے گیا دنیا سے، اور اس کا ذکر ختم ہو گیا، ان شانیہ کا هو الابتر کی لپیٹ میں آ گیا۔ جس نے اس گھر کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ادب سے کیا، محبت سے کیا، اور نبی پاک علیہ السلام سے جڑے ہوئے لوگوں کا ذکر ادب سے کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ میری بات کو آپ سائنٹیفک انداز میں اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کی ریسرچ کریں۔ ہو سکتا ہے میں کسی انفلوئنس کی وجہ سے بول رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو کنونس نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنے حصے کی ریسرچ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میرے جو کلمات تھے وہ غلط ہیں، میں کہیں ڈنڈی مار رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، بے ایمانی کر رہا ہوں، یا کسی جذباتیت کی وجہ سے بول رہا ہوں، یا میں سائنٹیفک انداز میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں۔ تو جہاں جس نے ادب کیا فلاح پا گیا، بے ادب ہوا نامراد ہو گیا۔ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے، اور خاص کر یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا میں آپ کو بتاؤں، اتنی عظیم قربانی، اتنا سا بھی آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے اس بارگاہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے وقت پہ اس چیز کو ریئلائز کر کے ساری لوگوں کو بتانا شروع کر دیا ہوا ہے۔ وہ بہت اونچی ہستیاں ہیں، وہ بہت بلند ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کر کے ہی آپ کا ذکر آگے چل سکتا ہے۔ یہ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ادب کی توفیق نہیں، آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اگر آپ امہات المومنین، صحابہ کرام، اور اسی طریقے سے جو بزرگ ہیں سلف صالحین، ان کا ادب آپ کے دل میں نہیں، آپ مارے جائیں گے۔ جب آپ کو ان بزرگوں کا ادب نہیں تو آپ کے اپنے گھر میں، اپنے قبیلے کے اندر آپ کے بے ادب پیدا ہو جائیں گے، جو آپ کو مرنے سے پہلے بے ادبی دکھائیں گے اور مرنے کے بعد آپ کو بالکل اگنور کر دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ اپنی لسٹ بنائیں، میرے پاس لسٹ موجود ہے، مجھے پتا ہے ایسا ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے لکھا ہوا ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ جن صوفیاء کرام نے، بزرگوں نے، سلف صالحین نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، محافل منعقد کی، میں دیکھتا ہوں دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی ڈیرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ واصف فلسفہ استاد محترم، آپ یہ دیکھیں استاد محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے رہے، ادب کے ساتھ جھک گئے اس بارگاہ میں۔ نام لینے سے پہلے واصف باصفہ کہتے ہیں، ایک ان کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے معاملے میں بڑی احتیاط کرو، اللہ اس معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی سینسٹیو ہے نبی پاک علیہ السلام کے معاملے میں۔ ہر بزرگ آپ کو یہی کہتے دکھائی دیں گے۔ جتنے لوگ الف کے 3 زاویوں میں گھوم رہے ہیں وہ آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے، وہ آپ کو عاشق وطن نظر آئیں گے، وہ آپ کو عاشق انسانیت نظر آئیں گے۔ یہ آپ اپنی ریسرچ کریں، اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی آرگومنٹ ملتا ہے بغیر کسی خوف کے رد کر دیں۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے، بالکل ایک بچے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ انڈرسٹینڈنگ جس سے میری زندگی بڑی سفل ہو گئی، سکون آ گیا اس کے اندر، میں بڑے سکون سے وقت گزار رہا ہوں الحمدللہ۔ میں نے
वो लड़ पकड़े हुए हैं, वो दामन पकड़े हुए हैं जिनके होते हुए मुझे धूप नहीं लगती, जिनके होते हुए मेरे नजरियात में बिगाड़ नहीं आता। मैं सोए हुए भी यही बात करूंगा। अगर आप मुझे सोए हुए अचानक जगाएंगे तो उस वक्त भी मेरे अंदर से या हय्यो या कय्यूम ही निकलेगा। जलजला आएगा तो भी उसी का नाम निकलना है, गिरूंगा, चोट लगेगी तो भी उसी का नाम निकलना है, क्योंकि उस नाम को बसाने के लिए बड़ी रियाजत करनी पड़ती है, उन महफिलों में बैठना पड़ता है कि वो उसका नाम आपके एक एक मसाम के अंदर से होता हुआ आपकी रूह में उतर जाए, जज्ब हो जाए। अगर नकली होगा ना, फारूक शाह की जबान पे सिर्फ लफ्ज होंगे, तो जबान का क्या है। अचानक किसी ने मुक्का मारा तो गाली निकल जाए, मुक्का मारा तो गाली निकल जाए, चोट लगी तो गाली निकल जाए, जैसे अक्सर मूवीज में आप देखते हैं गालियां निकलती हैं। तो हम जब गिरे, चोट लगे, तो मुंह से निकले अल्लाह अकबर, या हय्यो या कय्यूम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे ये आदत बड़ी अच्छी लगती थी अम्मी जी की। हमारे गांव में ना, जो हमारी पुरानी बुजुर्ग खवातीन माएँ, मासी नाती, अल्लाह ताला उनके दर्शात बुलंद करे, वो एक दफा कोई गिरने लगा गली में तो आवाज आई, ओ बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह यानी कितना खूबसूरत लफ्ज है। ये लोग जब दुनिया से रुखसत होने लगते हैं तो कलमा नसीब हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर जज्ब हैं ये कलमात। अगर सिर्फ जाहिर होगा, अगर सिर्फ जाहिर होगा, ईमान हलक से नीचे नहीं उतरा होगा, तो फिर मुसीबत में बारिश आएगी, ईमान गया काम से। जरा गुस्सा आया, गालम गलोच शुरू, जरा गुस्सा आया, गालम गलोच शुरू। जरा किसी ने कोई बर्दाश्त से हट के बात की तो जनाब वो माँ बहन एक कर देते हैं। तो बड़ी डेप्थ चाहिए, और ये जो अलफ के तीनों जावियों वाले लोग हैं, इनके अंदर आपको डेप्थ नजर आएगी। इनको आप गालियां देते रहें, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ताइफ के मुकाम पे गालियां खाई, कुछ ना कहा। किसी ने कूड़ा फेंका, कुछ ना कहा। किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, कुछ ना कहा। किसी ने आपके गले में ओजड़ी डाल दी, कुछ ना कहा। यह बर्दाश्त की पीक है। फिर आप अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनमें यही पीक नजर आती है। गालियां सुनने वाली सुन्नत भी पूरी करते हैं, गालियां सुनते रहते हैं, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, उन पे बोहतान लगाए जाते हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं किया जाता, वो बर्दाश्त करते हैं। अल्लामा इकबाल के ऊपर कुफ्र के फतवे, वाजिबुल कत्ल, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, बर्दाश्त कर लिया। शिकवा भी लिख के गए, जवाब शिकवा भी लिख के गए, तलू इस्लाम भी लिख के, अल्लाह का काम करते रहे, चूंकि उनको इदराक हो चुका था कि मेरे पास वक्त कम है, अल्लाह का काम मैंने करना है। चूंकि सारे लोगों के फतवे खत्म हो जाएंगे, लानतें खत्म हो जाएंगी, गालियां दब जाएंगी, अल्लाह का जिक्र नहीं दबेगा। फिर अल्लामा इकबाल के बाद जितने हमें सूफिया नजर आते हैं बुजुर्ग, इसी कबीले के, इसी मिट्टी के, इसी खमीर के लोग आपको दिखाई देंगे। जो मर्जी लोग कहते रहें, गालियां देते रहें, अपने काम से वो बाज नहीं आते। यस, जब बैठते हैं अंदर तो रोते हैं, तड़पते हैं। ये भी सुन्नत है, मैं आपको बताऊं। लोगों के रवैये पे हर्ट होना भी सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है वो गीली हो जाया करती थी इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए, कि लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा, मैं इनके फायदे की बातें बताता हूं। ये भी सुन्नत है। इस तरह जलना कोड़ना जो है, इस तरह का गम और कर्ब, ये भी सुन्नत है। ये मैं आपको वो सुन्नतें बता रहा हूं जो छुप गई हुई हैं। और जितने सूफिया इकराम आए हैं उनकी दाढ़ियां भीगी हैं, उनके दामन गीले हुए हैं, यही सोच सोच के कि कौम को समझ नहीं आ रही, हम इनको क्या दे रहे हैं। यही वजह है कि जब ये चले जाते हैं तो फिर दुनिया को समझ आना शुरू हो जाती है कि वो हमें क्या दे रहे थे। तो ये माल बेचने वाले जो हैं, इनकी जिंदगी में इनको समझे, इनके दर्द को समझे, ये किसका काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं। अगर आपको फज़गुरूनी नजर ना आए कहीं पे, मैं आपको पिछले सेशंस में भी कहा था, जिस पीर में, जिस आलम के अंदर आपको फज़गुरूनी नजर ना आए खुलूस के साथ, वो जाली है, छोड़ दें उसको। जो आपको डंडी मार रहा है कि आपको कोई और नुस्खा देता है, अपने बच्चों को कोई और नुस्खा देता है, डंडी मार रहा है, उसका वहां पे निस्बत नहीं है, उसकी अपने नफ्स के साथ निस्बत है। जो आपको धोखा देगा वो अल्लाह के साथ सच्चा रिश्ता कैसे बना सकता है। जो इंसान को धोखा दे, जो वतन के साथ गद्दारी करे, जो वतन के साथ गद्दारी करे, और जिसका जाहिर कुछ हो बातिन कुछ हो, वो आपको क्या देगा। और जो आपको धोखा दे रहा है वो जब दुनिया से जाता है तो अबतर हो जाता है, अबतर हो जाता है। तो अल्लाह के तीनों जावियों के ऊपर आज आपने गौर करना है। अल्लाह करीम बाबा जी इकबाल की जो कब्र मुबारक है, उनका जस्ते खाकी जहां पे दफन है, और उनकी रूह जो है
میں آپ کو پتا ہے قبروں کے ساتھ اس طریقے سے میری اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، میں صرف ایک یاد کے لیے اس ایریے کا احترام کرتا ہوتا ہوں۔ یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں جن کا ذکر زندہ ہو گیا، یہ ان کا ذکر زندہ ہو گیا، اور جن کا ذکر زندہ ہو جائے اسی طریقے سے ہیں جیسے آج بھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں وہ سامنے کہیں بیٹھ کے کہ لگا ہوا ہے بچہ لگا ہوا ہے، میں نہیں لگا ہوا، اگلوں نے تیار کروا کے اسپیشل نہا دھو کے وضو کر کے بیٹھا ہوں کہ اس بارگاہ میں جانے لگا ہوں۔ ننگی تارے ہیں، بڑے بزرگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو نوجوان ہیں احتیاط کیا کریں۔ آپ لوگوں کو نہ دین کی اس طریقے سے ابھی سمجھ ہوتی ہے نہ دنیا کی، اور آپ لوگ کسی کے انفلوئنس میں آ کے، طائف کے جو نوجوان تھے نا، نادان لڑکے ہی تھے، ابو جہل نے ان کو بہکایا، دوسرے لوگوں نے بھڑکایا، انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ کس انسان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا، وہ کسی اور کے انفلوئنس میں تھے۔ تو اگر آپ بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، اپنی حالت کے اوپر غور کریں، آپ کہیں طائف کے نادان نوجوان تو نہیں، کوئی آپ کو استعمال تو نہیں کر رہا؟ نفس بھی استعمال کرتا ہے، جہالت بھی استعمال کرتی ہے، تو اس لیے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، علامہ اقبال کو پڑھیں، الف کے تینوں زاویوں والوں کے ساتھ جڑ جائیں، زندگی میں مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بس آج علامہ اقبال کی یہ جو یاد میں محفل تھی، اللہ کریم قبول کرے۔ میں شدید تھکا ہوں، اب پچھلے 24 گھنٹے میں صرف میری 2 گھنٹے اور 32 منٹ کو نیند ہوگی تقریباً، اور ابھی مجھے مزید 4-5 گھنٹے جاگنے ہیں، کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں رات کے۔ تو علامہ اقبال کے لیے وہ پھر سے ایک میرے اندر وہ شدتیں آ گئیں، وہ انرجی آ گئی، پھر میں نہا دھو کے تیار ہوا، میں نے کہا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں ان کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ ضروری تھا۔ کروانے والے کرواتے ہیں، ہماری کیا مجال۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہت سارے اساتذہ کو یاد کر لیا جن کا نام محفل سے یاد نہیں رہتا، دل میں ان کا ذکر ہے ہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ریسٹ کریں، کافی وقت ہو گیا، 10:02 ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ سدا محترم رہیں، آپ کے والدین کو اللہ کریم صحت دے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کے اخروی معاملات کے اندر آسانی عطا فرما دے۔ یہ میری بڑی پسندیدہ دعا ہے۔ جو روح پرواز کر جاتی ہے نا، آپ کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ جڑ کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، عرض پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کرم کا معاملہ کر دیجیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض عام ہے اس میں شامل ہو جائیں، اس کارواں میں جہاں یہ فیض جو ہے وہ ملتا ہے، اور ان کا فیض اللہ کریم اور بڑھا دے، ہمیں ان کا شعور عطا ہو جائے، ان کا فہم مل جائے، ہمیں یہ ادراک مل جائے، یہ عرفان مل جائے کہ ہم اقبال کے اس درد کو سمجھ جائیں، وہ درد جو درد ملت اسلامیہ تھا، اس مشرق کا جو درد تھا، یہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہتے تھے۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی کسی موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔